Hi Manish. Hi Dhruv. Hi Surna. Hi Chachu. Chanakya, I'm waiting. Chanakya, I'm waiting. I'm live. Please come on Instagram. I have already, yeah, done that. Yeah. Hi. Varsha, I'm fine. Thank you, sweetheart. Hi. Hi. Thank you. Thank you so much. La 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 la. What I'm thinking, I should play the song, but we don't need more because we have already Chanakya Shukla here. Okay, I'm connecting Chanakya Shukla. जी, मैं फैन हूँ आपका. मैं भी कूलर हूँ सर. जोकिंग. ओके, फाइन. हाय. दैट वाज जोक. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Chanakya ji. And I welcome you in my show साक्षात दर्शन. आप सब सोच रहे होंगे मैंने इसका नाम ओके आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इस शो का नाम साक्षात दर्शन क्यों लिखा. The reason being, an artist is connected to spirituality and spirituality connected to Mother Earth. When you achieve this path, you don't want to be popular or famous. You just want to explore more and more. Then you become intangible asset and invisibly engaged with your art and craft and skills. That mental peace gives you hope, happiness, the purpose of life, and you can say Param Santushti. And my show named is साक्षात दर्शन because जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं गुम हो गए हैं. जो कलाकार हैं वो कहीं खो गए हैं. जो बहुत दिग्गज एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए. बट इनफैक्ट आई नो फ्यू बिगेस्ट एक्टर जो एनएसडी से पास आउट हैं. दोज दे डोंट यूज मोबाइल फोन. वो सोशल नेटवर्क पर इतना आ नहीं पाते, बट दे आर वेरी टैलेंटेड, very positive. So this is my show and I welcome every actor, those who can share their views related to acting skills and their own craft. So welcome. मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ चाणक्य जी. और आप हमारे साथ आए. और सेकेंडली या दिस Chanakya Shukla. So now, Chanakya Shukla is a professional singer based out of the capital city of India, New Delhi. He is an independent music producer as well, also known as Chank amongst his close circle. He has a long and fruitful history with music. A winner of a few national competitions and a great performer, Chanakya Shukla is a man of many talents. Yeah, I know that. He grew up in a musical environment as his father was a great fan of Mohammad Rafi and his mother was crazy for Kishore Kumar's music. Listening to music since childhood gradually manifested into a passion for Chanakya. In school, he was well known for his dance performances, but on his 14th birthday, his mother changed the every year trend of dancing and asked everybody to play Antakshari.
Lovely. It is here that Chanakya's voice was first appreciated and the journey began. His mother took it seriously and sent Chanakya to learn the basics of Indian classical music from the retired music director of Doordarshan and AIR, MC Sharma ji. Thank you so much for giving us such a talented musician, composer. Soon he met his partner Nishant Rastogi, with whom he jammed a little and discovered great chemistry between them. Soon they started writing and composing songs and formed a band known as Radix, the origin. They have earned a lot of name, fame, and commercial value for their heart touching self compositions. They have played on AIR thrice. With time, Chanakya moved more into music production. He now has a production house set up and has worked with many artists. We welcome you. Thank you so much again, Chanakya ji, because I know you from the depth. आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने कंटिन्यूअसली दो दो तीन दिन प्रैक्टिस की अपने शो के लिए, बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में. एंड मुझे लगता है कि म्यूजिक धुन धुन जो होती है वो हमारे अंदर होती है, पर वो हमें खोजनी पड़ती है अपने अंदर. जो मुझे लगता है कि मशीनी दुनिया, ये म्यूजिक जो एक हम मुझे लगता है कि कहीं ये कला, आर्ट, फीलिंग्स, म्यूजिक कहीं खो गए हैं. और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो दिग्गज म्यूजिशियंस हैं वो पीछे रह गए हैं. तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगी. चाणक्य, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे स्टार्टिंग की, मुंबई का सफर कैसा रहा, फिर आपने क्या प्लान किया, क्या सिनारियोज थे, वापस आप दिल्ली आए, अ, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इतना नाम कमा कर, इतना काम करके, आशिकी टू, आई हर्ड सो मेनी मूवीज आपने उनके लिए भी कंपोज किया. तो आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए. मेरे काफी सारे व्यूअर्स अभी जुड़ने वाले हैं जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड भी हैं, उन्होंने भी काफी काम किया है, तो माइट भी उनके लिए एक हेल्प होगी. थैंक यू. ओके सबसे पहले तो रूपाली, थैंक यू मेरे को अपने शो में इनवाइट करने के लिए. एंड थैंक यू. हाँ, तो अब आपके मैं क्वेश्चंस करता हूँ. तो या. मेरी म्यूजिक जर्नी जो मैं आपको बताऊं तो अ, जैसे हमारे यहाँ हम मानते हैं कि जिनके घर के अंदर म्यूजिक होता है, मतलब कि जो म्यूजिक घराने से बिलोंग करते हैं किसी, तो वैसा तो नहीं है मेरे साथ कि मेरे कोई पेरेंट्स किसी म्यूजिकल घराने से तो हम बिलोंग नहीं करते. हाँ, सर्विस क्लास तो बिजनेस क्लास कह सकते हो, बिजनेस क्लास काइंड ऑफ फैमिली है मेरी. पर म्यूजिक का कैसे इंटरेस्ट आया, क्यों मेरे फादर भी गाते थे, जैसे अपने अभी खुद इंटरव्यू में मेरी इंट्रोडक्शन में बताया, तो वो गाते थे कॉलेज लेवल पे. मेरी मदर भी गाती थी और उनको शौक था साथ में कैरियोके. अगर आपको बताओ तो कैरियोके हमारे पास सेटअप होता था और फिर हम हॉबी की तरीके से घर पे गाया करते थे. और हम तो छोटे बच्चे थे तो हमें कुछ पता नहीं था ये सब क्या होता है, पर देख के बड़ा अच्छा लगता था कि वो माइक पकड़ के मम्मी पापा दोनों साथ में ड्यूएट गा रहे हैं. तो आज भी शायद मेरे पास है, और ये आपके व्यूअर्स को देख के बड़ा अच्छा लगेगा ये सब. ये देखिए क्या है ये तो हाँ, ये ऑडियो कैसेट है और ये कैरियोके इस पे लिखा भी हुआ है. इसके काफी सारे हम पे सेट्स होते थे और पूरा सेटअप होता था. अब तो वो सब ऑब्सोलीट हो गया, तो अभी भी एक क्या कहते हैं उसको, एक शोपीस की तरह रखे हुए हैं ये सब चीजें. पर हमारे पास ये था कि दिस वाज ऑल काइंड ऑफ अ हॉबी. घर के अंदर हॉबी एक होनी चाहिए ऐसी, क्योंकि बाहर जो आज भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, जो आप बता रहे हो, वो तब भी थी. पर ये सब चीजें, ये सब हॉबीज आपको इन चीजों से एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखती हैं और आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हो. तो मेरे ख्याल से कि हमारे पास था घर में लगी. हमारे फादर से पुरानी जनरेशन में नहीं था, वो लोगों की कुछ और एंटरटेनमेंट होता होगा, पर हमारी जनरेशन तक आते आते तो हो गया था. तो दैट्स व्हाई आई वुड से कि हाँ, माय चाइल्डहुड वाज ऑसम. ये चीजें थी तब तक, क्योंकि हमसे पहले लोगों ने ये सब चीजें क्रिएट करी. अब आप कह रहे हो कि अ, आने वाले टाइम में या फिर अब वो चीजें नहीं है, तो उसमें गलती मेरे ख्याल से हमारी है, क्योंकि अब नाउ बॉल इज इन आवर कोर्ट. और बच्चे जो हम कहते हैं आजकल के बच्चे बेकार हो गए, तो हम भी फिर वो एक स्टीरियोटाइप बात कह रहे हैं, है ना. हमारे पास कुछ ऐसी चीज है नहीं बच्चों को देने के लिए, या फिर इतनी इंटरटेनिंग नहीं है कि वो एडिक्टेड हो जाए उस चीज के पीछे. बच्चे तो एक क्यूरियस माइंड होता है ना, जो सामने दिखेगा वो
क्यूरियस हो जाएगा। अब मेरे फादर का मैं बताऊं, कैरो के सेटअप मैंने खराब कर दिया और मेरे को बहुत पिटाई भी पड़ती थी उस चक्कर में, क्योंकि क्यूरियस में था। जब मैं स्कूल से आता था तो मैं देखता था, अच्छा कोई नहीं देख रहा, चलो मैं देखता हूँ क्या होती है ये चीज। वो क्यूरियोसिटी की वजह से मेरे अंदर शायद, मैं आपको पता नहीं है शायद, कुछ लोगों को तो मैं बता दूं, इंजीनियर भी हूं मैं। हाँ, तो बाय इंजीनियरिंग, प्रोफेशन यू आर मैकेनिकल इंजीनियर यार। तो वही नो, मैं पूछने वाली थी नॉट कि नॉट इंजीनियरिंग से मैकेनिकल, कैसे इंजीनियर। आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। ओके। या तो उसमें क्या है कि इंजीनियर डिग्री से आप नहीं बनते हो, एक एटीट्यूड होता है आपके अंदर इंजीनियरिंग का, कि एक ऐसी एटीट्यूड जैसे कि कोई भी चीज ठीक हो सकती है। ये कुछ दिन पहले मैं अपने ब्रदर से भी बात कर रहा था कि इंजीनियरिंग का एक एटीट्यूड होता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था टीवी पे, वो एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक एंड सम आयुर्वेदिका को कुछ डिबेट चल रहा है ना, तो ऐसा सब कुछ अब सोशल मीडिया पे वर्सेस हो गया है कि एक जाओ ब्लू टीम पे, एक जाओ रेड टीम पे, और नाउ फाइट। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि कॉमन पे निकल के आप, मेरे अंदर था हमेशा से वो, जो इसको क्यूरियोसिटी कुछ भी आप कहो, तो मैं देखता रहता था कि क्या चीज होती है, वो उसके इक्वलाइजर से खेलता रहता था। वो मेरा बचपन था म्यूजिक को लेके। और कभी एक बार, एक दो बार शायद कुछ कैसेट में मैंने अपने आवाज रिकॉर्ड भी कर दी होगी, बहुत गंदी आवाज रिकॉर्ड होती थी। एनीवेज, तो फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया जब ये दिस थिंग गेम, इंडियन आइडल, ये कई लोगों को पता होगा, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा हाँ, आया था जिस टाइम पे जो लोग प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं थे उन लोगों को भी हमने टीवी पे देखा कि अरे वाह, ये सब लोग टीवी पे आ रहे हैं और शायद कुछ चांस मिलेगा। तो कभी छुपके से, मतलब कि तब तो मैं पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में था, 10th में होगा शायद। तो पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर था हमारे घर में, यही है कि पढ़ाई पे सबसे पहले आपका कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आप ध्यान दे सकते हो बाकी अपनी हॉबीज पे। तो वो कहते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम गा सकते हो, तो ये सब देख के मैंने सोच लिया कि मैं गा सकता हूँ। कि यार ये सब लोग म्यूजिक बैकग्राउंड से तो नहीं है, तो ये लोग भी अगर गा रहे हैं और कुछ आड़ा टेढ़ा भी गा रहे हैं, तो शायद अपनी आवाज थोड़ी तो ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि आपने जैसा इंट्रोडक्शन में बताया, मेरा बर्थडे था और हम डांस वगैरह करते थे। तो मम्मी ने ही कहा कि आप डांस वांस छोड़ो, कुछ गाना वगैरह गाते हैं। और ये और ज्यादा शाय वाली बात होती है, क्योंकि डांस में म्यूजिक बहुत तेज लाउड बज रहा है, तो यू डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड क्या हो रहा है, आप बस डांस कर रहे हो अपने। लेकिन जब एग्जैक्टली। जब सिंगिंग होती है तो फिर सबकी नजर आप पे होती है कि अरे क्या गा रहा है ये, अरे हल्का सा सुर हिल गया, अरे इसने स की जगह ब बोल दिया, नहीं तो ये बहुत ज्यादा आप और कॉन्शियस हो जाते हो कि अरे सबका अटेंशन मेरे ऊपर है। तो उस समय मेरे को याद है मैंने गाना गाया और ऐसे सर ऐसे नीचे करके, और सबको सबको मैंने बोला, जैसे वो देखिए असलम भाई उसमें कहता है ये सब लोग मुंडी उधर कर। तो सबके सब जो थे, जो मेरे बर्थडे पे आए थे, वो सबके सब उनको बोला मैंने चुप रहो, मेरे को गाने दो। तो मैं ऐसे करके फिर मैंने अदनान सामी, अगर आपने सुना हो तो, अदनान सामी मेरे को उनकी वॉइस बड़ी पसंद थी, और मैंने उनका एक गाना गाया था बड़ी भारी आवाज में, ये, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। तो इतना गाया, और सबको मतलब लगा कि यार ये तो अच्छा गा लेता है यार, ठीक है। घर में भी जो मेरे आए थे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, वो कहते यार एक नया टैलेंट पता लगा हमको। मैंने कहा अच्छा, चलो कुछ करेंगे, इसका क्या कर सकते हैं। तो मेरी मदर ने एक दिन देखा कि मेरे एग्जाम्स हो गए हैं 10th के, उसके बाद फिर मैं क्या करूं, तो उन्होंने मेरे को, शी पुट मी इनटू क्लासेस, या फिर शायद 10th से पहले की बात होगी, शी पुट मी इनटू क्लासेस विद, मेरे फर्स्ट गुरुजी थे वो दूरदर्शन के रिटायर्ड म्यूजिक डायरेक्टर थे। ही वाज ऑलरेडी वेरी सीनियर, मतलब आप समझ रहे हो, इंडस्ट्री वगैरह को पार करके आदमी जब रिटायर हो जाता है तो उसके पास काफी कुछ होता है देने के लिए। तो मैं उनके पास गया, और फिर एकदम, मैं तो बच्चा ही था एकदम, ठीक है। तो वहां पे ये सिस्टम नहीं था, वो एक आपको नहीं पता शायद कि जब गुरु शिष्य बनते हैं ना, तो उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे उसमें, इसको गंडासा बोलते हैं, इसको बांध के और फिर अब गुरु को अपना गुरु ऑफिशियली मानते हो, एक दक्षिणा दे के एंड सम स्वीट, देर आर सम ट्रेडिशनल। तो वो नहीं हुआ था, क्योंकि वो प्रोफेशनल रह चुके थे, मेरे ख्याल से नौकरी कर चुके थे दूरदर्शन में
एआर में सरकारी, तो उनके पास काफी कुछ था देने के लिए। उनके खुद के बच्चे बड़े बड़े थे, मेरे घर के पास रहते थे और मेरी मदर जानती थी उनको। तो शी गेव मी वन डायरेक्शन कि आप इनके पास जाके सीखो। अगर उन्होंने कह दिया कि तू गा सकता है या फिर म्यूजिक से तेरा कुछ भी हो सकता है तो फिर कंटिन्यू करना, अदरवाइज भूल जाओ ये चीजें, ये पागलपन है, ये तो सही में पागलपन है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जाता हूँ, मैं गया उनके पास और डेडिकेशन दिखाई मैंने। मैंने ऐसा किया कि उन सर क्या, मेरे तो गुरुजी या अंकल जी कुछ भी मैं बोलता हूँ उनको, तो दादाजी की उम्र के थे। उन्होंने मेरे को, जब मैंने सिखाया उन्होंने मेरे को, तो मैंने बहुत अच्छे से सीखा। और मतलब उनको मैं क्विक उसका रिस्पॉन्स देता था जो जो वो सिखाते रहते थे मेरे को। तो उन्होंने सबसे पहली चीज जो बड़ी सी सिखाई थी मेरे को, उन्होंने कहा कि तुम अपने देश का नेशनल एंथम, राष्ट्रगान सीखो हारमोनियम पे। तो मैंने वो सीख लिया था। अब कैसा क्या होता था कि उनके यहाँ जाता था तो एक हारमोनियम मिलता था मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए। चाय पिलाते थे एक इतना ग्लास भर के, और हारमोनियम होता था एक। अब आज तो आजकल तो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता हूँ कि वो कैसे हाल में हैं। काफी उस टाइम पे काफी एजिड थे। अगर वो ठीक ठाक है तो मैं उनकी अच्छी हेल्थ की प्रेयर करता हूँ। बट घर आता था मैं, घर में मेरे पास एक टूटा हुआ हारमोनियम था, उसका पर्दा फटा हुआ था। तो फटे हुए पर्दे वाले हारमोनियम में क्या होता है, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो मैं एक हाथ, और छोटा था मैं इतना, तब मसल भी नहीं बिल्ट हुए होते, तो मेरे हाथ थक जाता था वो दबाते दबाते, और फिर उसमें प्रैक्टिस करता रहता था मैं। और फिर क्या होता ना, हमारे इंडिया में तो लाइट्स जाती, मतलब देर आर बैकआउट, क्या बोलते हैं, पावर कट्स, जिसमें हम्म। लाइट चली आती है। तो लाइट चली आती है तो अब आपका कीबोर्ड वगैरह बजा नहीं सकते हो आप। ये आजकल के जमाने में तो आप सोच ही नहीं सकते हो, लाइट चली आएगी तो म्यूजिक, अरे भूल जाओ अब तो। बट हारमोनियम बजता था। तो फिर ना मेरे से परेशान हो जाते थे घर वाले कि अबे यार अब लाइट जाएगी, ये अपनी पेटी उठा के आ जाएगा और बजाने लग जाएगा। तो मेरे से घर वाले बहुत परेशान रहते थे इस बारे में कि ये, मतलब आई यूज्ड टू बिकम अ पकाओ म्यूजिशियन। रिश्तेदार भी आने लगे घर में, तो वो देखते रहे, ये क्या पकड़ा दिया इसको, इस उम्र में तो बच्चे गिटार वगैरह पकड़ते हैं, पेटी वेटी पकड़ा दी इसको। बट लेता था मैं वो सब थोड़ी बहुत आपको क्या कहते हैं, जो थोड़ी पेनिंग होती है ना, मतलब कि थोड़ी बहुत चीजें चुभनी चाहिए लाइफ में, जिससे आप थोड़े पेन्स लो। नहीं तो और पेन्स थे क्या मेरे पास ऐसा नहीं था कि खाने को नहीं था, या फिर मैं बहुत गरीब घर से हूँ। जैसे यहाँ पे हम सुनते थे तो रोज आते थे, यार कोई कितना गरीब और गा भी रहा है। और फिर हमारे पास ऐसा लगता था कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए, सैड लाइफ, तो ही आप कुछ गा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ कई सारी चीजें तो अब आप सबको पता है, रियलिटी शो की रियलिटी क्या होती है। पर उस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं तो वहीं पे ही स्टिक करूंगा कि मेरी क्या स्टोरी है। वो तो उनका पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर ये हुआ मेरा थोड़ा स्कूल का टाइम, जब मैंने अपना म्यूजिक सीखना शुरू किया। फिर थोड़ी पढ़ाई ठीक ठाक हुई। देन स्कूल का जब आखिरी टाइम था, तब आई ऑल्सो मेड अ बैंड। मेरा एक स्कूल के टाइम पे रॉक बैंड बना, जो आपको मैंने बताया कि मैं किस किस से मिला। तो उस टाइम पे जैसे कि बच्चे लोग शाम को क्रिकेट खेलने जाते थे, पता नहीं अब जाते नहीं जाते, अब तो सब पबजी हो गया है सबके सबकी लाइफ में ना, छोटे बच्चों की लाइफ में। दे दे प्ले वीडियो गेम्स ऑन फोन। जबकि मैं भी बहुत बड़ा, मतलब क्रेजी गेमर था एक टाइम पे। बड़ा गेमर तो नहीं था, बट क्रेजी गेमर था। आई यूज टू हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज होती थी मेरे पास एक इतना बैग भर के। आपको बल्कि मैं थोड़ा बहुत दिखा भी सकता हूँ कि अभी भी देख लो आप, मेरे पास कलेक्शन सीडीज का कितना है। दिस आर ऑल सीडीज। ये सारी सीडीज रखी हुई है, आज तक रखी हुई है। और कोई कहेगा कि आज के जमाने में तुम सीडीज क्यों रखी हुई तुमने। तो मेरे पास गेम्स की इतनी सारी सीडीज होती थी, तो मैं घर से निकलता ही नहीं था। तो कभी मेरे को चोट वोट लगी नहीं, जैसे होते हैं ना बच्चे खेलते हैं और चोट वोट लगते हैं। मेरे ब्रदर को बहुत चोट लगती थी, वो हाथ पांव छिले ही रहते थे उसके, बिकॉज ही यूज्ड टू स्टेप आउट। पर मैं घर में ही रहा तो मेरी सारी हॉबीज भी घर में रहने वाली ही हैं। जैसे कि गाने सुनना, कैरम खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, म्यूजिक, इंडोर में और लगा लो आप स्विमिंग, ज्यादा से ज्यादा आउटडोर का बास्केटबॉल। इतना ही, ऐसी हॉबीज ही डेवलप करी मैंने तो चेस, मतलब इंडोर गेम्स, ऑल दोज गेम्स लाइक दैट। तो फिर क्या हुआ कि अपने बैंड बना।
बैंड बना तो जैसे बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे शाम को, तो मैं जाता था अपने फ्रेंड्स के पास, म्यूजिशियन फ्रेंड्स के पास, गिटार बजाने, या फिर म्यूजिक जैमिंग बोलते हैं हमारी हमारी भाषा में। दैट यूज टू बी आवर जैम, कि हम जा रहे हैं और साथ में क्रिकेट वगैरह खेलने के बजाय हम लोग गाने प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तब भी गाने की बजाय हमें घर से तो सुनने को यही मिलता था, अभी तुम 10 साल 20 साल और लगा लो तो ये बड़े बड़े जो तुम बैंड्स को जिनको आइडलाइज करते हो उनके बराबर कुछ भी नहीं बन पाओगे। पेरेंट्स ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, तो अच्छा लगता था वो सब सुनने में। बट धीरे धीरे क्या हुआ, आई डेवलप्ड अ हॉबी। मैं लिखा करता था। ऐसा होता था मेरी एक डेवलपमेंट ही थॉट की ऐसे हुई कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो सर के ऊपर, जब पढ़ा रहे हैं टीचर क्लास के अंदर, अगले दिन एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं अपनी नोटबुक वगैरह जो होती थी ना उसके आखिरी पेजेस पे कुछ गाने बज रहे हैं दिमाग के अंदर कि ये कुछ हो सकता है, तो मैं लिरिक्स लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो दैट्स हाउ आई डेवलप द हॉबी ऑफ राइटिंग पोएट्री, कि यार दिमाग में कुछ लाइन आ रही है तो मैं क्लासरूम में बैठे ये सब काम करता था। तो मार्क्स एवरेज रहते थे, इतना अच्छा एक्सेल तो नहीं था। हाँ, मैं पढ़ता रहा हूँ तब से लेकर, तो पढ़ता रहा हूँ, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी टॉपर या बहुत ज्यादा एक्सेल करता रहा, ऐसा नहीं है। बट फ्री टाइम में क्या कर, फ्री टाइम नहीं, क्लास के टाइम पे पढ़ने के बजाय मैं ये सब करता था। ये ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपके शो में ही। तो ऐसे गाने लिखने शुरू किए। तो फिर जब फ्रेंड्स थे या जो भी लोग सुनते थे उन सबको एक नया टैलेंट ये पता लगा कि मैं अपने गाने खुद बनाने लगा हूँ। मतलब ये सब तो इंडियन आइडल में भी आप फिल्मी सॉन्ग्स गाते हो ना, बाकी आर्टिस्ट के, बाकी सिंगर्स के फिल्म के गाने गाते हो। यहाँ पे मेरे को नहीं पता था, अपने आप एक टैलेंट डेवलप हो रहा है कि मैं अपने सॉन्ग्स खुद लिख रहा हूँ। और इंटरनेट पे जब सर्च किया तो ऑलरेडी इसके लिए एक टर्म होता है, सिंगर सॉन्ग राइटर बोलते हैं इसको। सिंगर सॉन्ग राइटर एक ऐसा होता है शख्स जो कि अपने गाने खुद लिखता है, अपनी शायरी खुद लिखता है, अपनी धुन खुद बनाता है। और मतलब एक पूरा एक गाना उसका खुद खुद की सोच होती है, जो वो आसपास महसूस कर रहा है उसके ऊपर उसने गाना लिखा। और ये दैट इज प्रीटी मच सिंगर सॉन्ग राइटर। तो मैं बन गया था वो लगभग। बैंड में मैंने अपने गानों को शेयर किया कि देखो ये सब मैंने कुछ बनाया, तो उन लोगों को लगा यार इसमें तो हम सिर्फ गिटार पे क्यों बजाएं इसको, इसको ऐसा करते हैं कि हम कोई इसमें ड्रम्स बजाएगा, कोई इसमें गिटार बजाएगा, कोई कीबोर्ड बजाएगा, तो ये गाना भरा हुआ लगेगा। और दैट्स हाउ आई मेट सम ऑफ माय बैंडमेट्स। और सुनने में लोगों को पसंद आया। और फिर जब लोगों को पसंद आया तो जब ऐसा होता है ना कि जब मैं गा रहा हूँ तो इट फील्स लाइक कि मैं आईना देख रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि मेरी आवाज गूंज के मेरे को ही सुनाई दे रही है, कैसी है ये। मेरे को बस इतना पता है ये मेरी आवाज है, अच्छी है बुरी है वो मेरे को नहीं पता। तो जब औरों ने सुना और उनके रिस्पॉन्स अच्छे आने लगे, तो फिर मेरे को पता लग गया कि अच्छा जा रहा है। देन आई नेवर लुक बैक। फिर हम लोग एक के बाद दूसरा शो, दूसरे के बाद तीसरा शो, और फिर हम करते ही चले गए। ऐसे ही फिर हमारी दोस्ती भी उन्हीं लोगों में हुई। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी हम उम्र भी रहे होंगे, जो आज भी हैं हमारे हम उम्र ही हैं। क्या करें जिंदगी में हमको पता नहीं, लेकिन उस समय हमें वही लोगों से ज्यादा ताल्लुक रखा हमने जो म्यूजिक से ताल्लुक रखते थे। अब म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं था, तो फिर मैं दिल्ली के जितने भी कल्चरल सेंटर्स हैं, जैसे इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड में, ICCC कल्चरल सेंटर, यहाँ सब जाके मैं खुद से जाके म्यूजिकल शोज अटेंड करता था। क्लासिकल म्यूजिक के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आपको फ्री एंट्री है, कई सारी शोज में आपको आने देते हैं। अगर अच्छे आप श्रोता हो, आप सुनना चाहते हो, तो वो वेलकम करते हैं आपको कि आप आइए सुनिए। और ऐसे मेरे को वेलकम मिला। मैं ये बात भी कहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो जितने भी क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उन लोगों ने मेरे को बहुत वेलकम करके मतलब अपनी संगत में अलाउ किया कि आप सुन सकते हो। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक की इज्जत करते हो तो आप आपको बिल्कुल वेलकम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि क्लासिकल म्यूजिक में सबसे बड़े दिग्गज जिनको माना गया है आज तक भी, और सब लोग जितने सुन रहे होंगे उन्होंने नाम भी सुना होगा उनका, पंडित जसराज जी स्वर्गवासी हो चुके हैं। आप रिसेंटली उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनको साक्षात मैं मिला हूं।
मेरे को बाद में पता लगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। एक मैंने उनका शो अटेंड किया था इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और फिर कुछ ऐसा था कि जिन लोगों के साथ में गया था वो जानते थे उनको, तो ग्रीन रूम भी जाने को मिल गया। ग्रीन रूम में देखा मैंने कि अरे सामने बैठे हैं, मैंने कहा गाया तो इन्होंने बहुत भयंकर है, बहुत मतलब कि उनको सुर सम्राट कहते हैं, और कहते भी रहेंगे। उनकी बराबरी में आज भी कोई नहीं गा सकता है, जितने भी बॉलीवुड में हो, प्लेबैक में हो, या फिर कहीं पे भी हो, वो कोई भी उनकी बराबरी में आज भी नहीं गा सकता है। सुर सम्राट हैं वो, कोई घराना हो, नो देयर इज नो मैच। बट तब मैं गया और मैंने कोशिश करी कि, क्योंकि हमारे यहाँ अंदर यही है कि हम उनको ग्रीटिंग करें, तो मेरे को एक याद है फनी सा इंसिडेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो उठने लगे और जाने लगे, और मैंने सोचा कि इनके पाँव छूता हूँ, तो उनकी वो एक कोलापुरी टाइप की चप्पल थी, मेरे को आज भी याद है। मैंने उनको चंड स्पर्श से आई ट्राई टू टच हिज फीट एंड ही वॉकड अवे। तो बाद में मेरे को बोला कि उन्होंने कि अरे पागल बुद्धू, इनके पाँव नहीं छूते हैं ये बात नहीं करते किसी से, ये बस गाते हैं और बात नहीं करते किसी से फालतू, और तुम हो कौन जो तुम्हें फालतू में आशीर्वाद दे देंगे। मैंने कहा चलो यार, ये तो होता ही आगे पीछे जो भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरे को यह है कि एक एक सेंस हो गया कि उन्होंने इतना भी कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना बैकग्राउंड म्यूजिक का। ये सब शौकिया बाथरूम सिंगर्स हैं मेरे घर में इसमें कुछ ऐसा कोई है नहीं, तो मेरे को अगर एक कुछ परसेंटेज भी अगर उनके आशीर्वाद का मिला होगा, तो उस दिन से मैंने सोचा कि यार वाह, कि अपनी थोड़ी बहुत एक एक म्यूजिकल सर्कल के अंदर थोड़ी वो एक एंट्रेंस हो रही है एक तरीके से। अभी तक पहचान तो क्या बनेगी, पर एक तरीके से एक अच्छी राह में जा रहा हूँ मैं, मेरे को ऐसा लगने लगा। तो उसके बाद फिर अपने पास भी शोज वगैरह आए छोटे मोटे, कभी कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो फिर वो तो ऐसा होता रहा कि कंपटीशन तो इज लाइक कंपटीशन, वहां पे आप अपनी कॉम्पोजिशन को लेके इतना सीरियस नहीं हो सकते, वहां पे हमारा मोटिव ऐसा होता है कि हमें जीतना है ये कंपटीशन। तो बट मेरा हमेशा, इवन आपका कॉलेज जो है, मेरे को ये बाद में पता लगा, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन करी है, वहां पे कुछ साल पहले मेरा ही बैंड वहां पे बेस्ट पॉपुलर चॉइस अवार्ड जीत के गया था। ये कोइंसिडेंस है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैं वहां पे गया था, और ऐसा था कि दिल्ली के ही कोई, या फिर नोएडा के ही कोई, नोएडा स्कूल ऑफ रॉक एक करके कोई बड़ा पॉपुलर वहां पे म्यूजिक स्कूल है, और मेरे को पता लगा कि वहां के जज आ रखे हैं वहां पे। मतलब ये सब बड़े नाम है, हम अभी बच्चे हैं, और वो सब लोग अगर स्कूल चला रहे हैं तो इट्स अ बिग थिंग मैन। तो मैंने देखा कि ये, और जो एक बैंड है वो उन्हीं का ही स्टूडेंट्स का बैंड है, तो मैंने कहा ये तो हम तो गए यार, ये तो फर्स्ट तो यही आएंगे। ये कोई फिक्स होने वाली बात नहीं कि वो फिक्स होगा मैच, बात ये कि दे विल बी सो गुड, हम अभी कच्चे हैं, और वो बहुत अच्छे होंगे। और हुआ भी ऐसा, उन्होंने जैसे ही बजाया हमें सेंस हो गई कि यार ये बहुत अच्छा है, दे आर वे बेटर देन अस, ये हमसे अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं जीत सकते। फिर भी हमने कहा हम हार नहीं मानते, लेट्स डोंट गेट इनटू द कॉम्पिटिशन, हम्म। आते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो हुआ ऐसा, मैं आपको रूपाली एक अच्छी सीख मैं आपके लाइव में बताना चाहता हूँ कि क्या मिली उस दिन हमें सीख, कि कंपटीशन तो था, और बेशक वही लोग जीते जो कि सर के शिष्य थे, पर हमें भी एक अवार्ड मिला, हमें मिला पॉपुलर चॉइस अवार्ड, क्योंकि उनके सुर सही थे, उनके ताल सही थी, दे वर टेक्निकली वेरी करेक्ट, तो उनको मार्क्स सही मिले। लेकिन हम लोगों ने क्राउड को इतना अच्छा एंटरटेन किया, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया अपने तरफ, कि वो हमारे साथ गा रहा था, नाच रहा था, तो हमें एक पॉपुलर चॉइस अवार्ड, एक स्पेशल अवार्ड आउट ऑफ द लीग हमें दिया गया। और गाना कौन सा था मैं आपको बताता हूँ, मेरा ही एक सॉन्ग था, गाने का नाम है गम। सुनाइए। सुनाता हूँ सुनाता हूँ। Am I audible? या तेरी
आई, आंखों में भर गया गम, याद तेरी आई, आंखों में भर गया गम, सांसों का तूफान है, डूबे इस जहां में हम, आलम ये गम का है, डूबे इस जहां में हम, गम का ये तूफान है, डूबे इस जहां में हम, तेरी हर एक अदा को तरसे है मेरा जुनून, तेरी हर एक अदा को तड़पे है मेरा जुनून, अमेजिंग चाणक्य, मतलब आई एम लिसनिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे याद है जब हम वाईएमसी में थे तब भी कोई शो या कोई इवेंट होता था तुम आते नहीं थे, बिकॉज अब वो कहते नहीं कलाकार अपनी धुन में रहता है, तो यू ऑलवेज बिजी विद योर हारमोनियम, विद योर गिटार, विद योर इंस्ट्रूमेंट्स, विद योर सेल्फ, और दैट इज वाई, या सो चाणक्य, आई Why? वांट टू आस्क यू, आई क्योंकि वांट अभी टू आस्क, there is a school in YMCA also, there's a different department, Y School of Music. तो या कॉलेज हो गया, उसके बाद मैंने फिर उसके बाद एक गुरुजी और बने जिनसे मैंने क्लासिकल फिर फाइनल सीखना शुरू किया। तब मेरे दिमाग में एक और चीज चढ़ गई थी, विच इज अ काइंड ऑफ अ वेरी कमर्शियल टर्म। लोग कहते हैं सूफी म्यूजिक सीखो, सूफी म्यूजिक। तो सूफी म्यूजिक एज सच कुछ होता नहीं है। सूफी इज अ जॉनर, एक मतलब कि जैसे हमारे हिंदी में लिखा है ना, भक्ति रस होता है। भक्ति हाँ, रस मतलब आप ईश्वर को याद करके जो रस है आपका, दैट इज सूफीनेस। इसीलिए इतना ज्यादा आपको टचिंग लगता है कि अरे वाह यार, ऐसा लगता है जैसे कि मुक्त हो गए हम। ये मेरे को काफी टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि इसका मीनिंग क्या है। तो सूफी म्यूजिक कोई सिखाता ही नहीं है। इट इज नथिंग लाइक दैट कि सूफी म्यूजिक कोई एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली क्या करना था मेरे को क्लासिकल म्यूजिक सीखना अब शुरू करना था कि राग क्या होते हैं, ताल क्या होती हैं, तराने क्या होते हैं, और इन सब की जुगलबंदी क्या होती है, बंदिशें क्या होती हैं। ये सब मेरे को पता नहीं था, सुनी थी बस, नाम सुने हुए, लाइक जागन्स। बट ये एक्चुअली में होता क्या है, ये सब मेरे को पता नहीं था। तो मैंने फिर सीखना शुरू किया। मेरे पुराने गुरुजी ने ही मेरे को एक नए गुरुजी से मिलाया, जो कि इंदौर घराने और बनारस घराने के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके थे, और उस समय वो भी गा रहे थे और प्रोफेशनल सिंगिंग करते थे। तो मैं उनका अब नाम लूंगा, आचार्य अभिमन्यु जी। और आचार्य का मतलब हमारे हिंदी में होता है, मतलब कि ही इज अ बैचलर्स, जैसे हमारी आपकी भी जैसे बैचलर्स हैं, तो आप हुए आचार्य रूपाली शर्मा जी। मेरे पास बैचलर डिग्री है, तो मैं बना आचार्य नहीं, मैं आचार्य नहीं बना। आचार्य होता है मास्टर डिग्री, आपके पास मास्टर अच्छा, डिग्री। जो आचार्य से नीचे होता है दैट इज शास्त्री। तो शास्त्री। हाँ, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप बनते हैं शास्त्री रूपाली शर्मा। तो मैं भी आचार्य चाणक्य नहीं हूँ, मेरे से आप वो मत कंपेयर करना। मैं शास्त्री चाणक्य शुक्ला जरूर हूँ, क्योंकि मेरे पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की है। तो दैट्स हाउ, मतलब इट्स जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। तो हाँ, लेकिन मेरी जैसी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी मैं आचार्य बन जाऊंगा। मेरे लिए विश करो कि मास्टर्स मेरी कंप्लीट हो, अभी भी चल ही रही है पढ़ाई मेरी। तो मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा था कि उसके बाद जब मेरी वहाँ पे पढ़ाई हुई, तो मैं आचार्य अभिमन्यु जी से मिला। वहां से मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, एक राग सीखा, क्लासिकल राग है वो, मैं आपको इसको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। पर उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब वाईएमसी में आपको मैं मिला हूँ एंड आई वाज लर्निंग एक्टिंग एंड टीवी प्रोडक्शन आपके साथ ही, तब मैं साइड बाय साइड वाई स्कूल ऑफ म्यूजिक से पियानो सीख रहा था। फर्स्ट ग्रेड टिनिटी लंदन के ग्रेड्स कर रहा था मैं, क्योंकि मेरे को वेस्टर्न म्यूजिक भी थ्योरेटिकली बिल्कुल नहीं आता था। तो आई वाज डूइंग इनिशियल ग्रेड्स फ्रॉम देयर, दैट्स इट।
आपका क्वेश्चन, मैं इसके बाद फिर आपको राग सुनाऊंगा अगर आपको अलाउ करोगे तो। डेफिनेटली आज हमारा पूरा शो सूफियाना म्यूजिक और बहुत जितने भी आपने सुर सीखे हैं वो सब आप एक्सप्लोर करेंगे। मेरा चाणक्य आपसे क्वेश्चन है कि आपने अभी जो अपना ऐप प्रिपेयर किया है खुद का, तानपुरा ऐप, आप यस। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और मुझे ये बताइए कि ट्रेडिशनल म्यूजिक आज के दौर में कौन सुनता है ट्रेडिशनल म्यूजिक? आप क्यों ट्रेडिशनल म्यूजिक को प्रमोट करना चाहते हैं? आई एम नॉट टेकिंग इट इन अ नेगेटिव वे, आई जस्ट वांट टू आस्क टू यू कि इसको आप प्लीज जो मेरे व्यूअर्स हैं और आई विल अपलोड इट एवरीवेयर, तो ट्रेडिशनल म्यूजिक हमारे लिए क्या बेनिफिट करता है, सोसाइटी के लिए क्यों बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए क्यों बेनिफिशियल है और मेंटल पीस के लिए क्यों बेनिफिशियल है? ओके। या तो देखो रूपाली, फिर उसके बाद जब मैंने ट्रेडिशनल म्यूजिक से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ आज, एक्चुअली जब आचार्य जी से मिलने के बाद पहली बार मैंने तानपुरे पे प्रैक्टिस करी है। तानपुरा मतलब नॉट दैट अकूस्टिक तानपुरा, एक इतना सा वो आता है मेटल का तानपुरा आता है, सब जानते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आता है। उसमें पहली बार उन्होंने मेरे को श्रुतियों का ज्ञान क्या होता है ये सब बताया, थोड़ा और डीपली मैं स्टडी करने लगा। और फिर ऐसा नहीं है कि पुराना मैंने जो उससे पहले सीख रहा था वो सब गलत साबित हो गया, वो सब भी वैलिड करते हुए उन्होंने आगे पढ़ाना स्टार्ट किया मेरे को। पर सुन के मेरे को बहुत मेंटल पीस लगता था। मेरा मेरे आसपास जो भी कुछ चल रही थी ना बातें, जो मेरे पीयर्स के साथ, एक होता है ना पीयर प्रेशर, कि आपके साथ वाले हैं उनको देखो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो गर्लफ्रेंड्स ब्रेकअप ये सब भी था। ठीक है, और इनफैक्ट मेरी भी पढ़ाइयों पे इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होता ही है। जब आपके आसपास वही है तो फिर वही सब आपको इन्फ्लुएंस होगा इन सब चीजों से। बट वो एक बहुत अच्छा हाइड आउट था मेरे लिए, कि मेरे पास जब कुछ नहीं करने को तो मैं जितना भी टाइम दे सकता हूँ, और जितना टाइम दूंगा मैं अपनी रियाज को, जितनी प्रैक्टिस को, उतना मेरा ही गला ठीक होगा। और उसके बाद मैं जिससे मिलूंगा तो अच्छी वाहवाही मिलेगी। और बेस्ट बात है कि आप जितना टाइम जिस चीज को दे रहे हो ना, तो कोई उसमें झूठ है ही नहीं। जब आप गाओगे सामने तो पता लग जाएगा कि ये 3 घंटे वाला रियाज है या फिर शॉर्ट टर्म है या फिर इसने बहुत रियाज किया है, पता लग जाता है वो, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा एक तो अपनी ऐप के बारे में, कि तानपुरा इसलिए मेरे को बनाया मैंने क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत महंगा था। लाइक उस टाइम पे भी 7-8 हजार का आता था। और मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे, मतलब कि बिल्कुल मैं पैदल जाता था गुरु जी के पास भी, जहां भी क्लास करने बुलाते थे वो, मैं घर भी नहीं बुला सकता था उनको। उन्होंने थोड़ा कंसेशन ऐसे दे दिया था मेरे को कि तुमसे फीस में थोड़ा कम मैं इसलिए ले लूंगा। अच्छा, पुराने गुरु जी ने मेरे से एक पैसा नहीं लिया मेरी अच्छी काबिलियत देखे, लेकिन अगले गुरुजी ने साफ कह दिया था कि मैं तो भाई अपनी रोजगार चलाता हूँ, तो आपको मेरे को ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर मैं घर से ही या फिर कुछ भी करके अपनी पॉकेट मनी से जोड़ जाड़ के मैं उनकी फीस जुगाड़ता था। तो तानपुरा तब बड़ा महंगा होता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐप ऐसी बनाई जाए। तो मैंने सॉफ्टवेयर पे खुद डेवलप करके जावा लैंग्वेज में और एक ऐप बनाई है, तानपुरा ऐप, जो कि मैं आपको बता भी दूं। एंड्रॉइड जिनके पास मोबाइल है वो क्या कर सकते हैं कि अ, रुको इधर आओ, एक सेकंड, सॉरी। ये ऐसे गूगल एंड्रॉइड फोन होता है ना, तो उस पे आप गूगल पे आप जाओ। एक सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, मेरा नाम आप टाइप कर सकते हो, जैसे चाणक्य शुक्ला आप टाइप करोगे तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया, वाई इट इज नॉट क्लियर यार, इट्स सॉरी। नॉट क्लियर, बट हाँ, इट्स नॉट क्लियर। आई एम सॉरी। बट इसके अंदर आपका ऑप्शन पहला आएगा, एंड्रॉइड एप्स बाय चाणक्य शुक्ला, उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर वेट वेट, शायद ना, एक सेकंड, बैक, ये लाइट कम करता हूँ, उधर भी नहीं हो पाएगा। हाँ, वो रिफ्रेक्ट हो रही है लाइट तो वो नहीं क्लियर होगा चाणक्य जी। मैं आई अपलोड आई अपडेट इट। सो चाणक्य, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपने इंडस्ट्री के साथ भी काम किया, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक म्यूजिशियन या फिर कोई एक्टर हो या फिर कोई एक जिस चीज में वो परफेक्ट हो जाता है या उसको लगता है कि अब वो इंडिविजुअली उस फील्ड में और एक्सप्लोर कर सकता है, वो खुद में दिग्गज हो गया है, जब उसको खुद रियलाइज होने लगता है कि अब उसको नहीं लगता कि उसे काम मांगने की जरूरत है, वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ जीता है और मुझे लगता है कि वो फैमिली के बारे में नहीं सोचता है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और
आई थिंक वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। आर्टिस्ट का मोस्टली ये रहता है। तो आप अपनी पॉकेट मनी कैसे या फिर आप अर्निंग कैसे करते हो? और मुझे ये जानना है कि मुंबई में जो आपने इंडस्ट्री में काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर क्या डिसाइड किया आपने, क्यों डिसाइड किया कि आपको वापस दिल्ली आकर ही काम करना है, अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना है? हम्म। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे को पहले ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता था कि ये होता क्या है कि काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा मतलब कि यार देखो, काम तो आप ढूंढ लोगे, आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ काम। बट बेसिकली व्हाट व्हेन से देख कि काम नहीं मिल रहा, मतलब कि उनको फिल्म लाइन में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या फिर एक्टिंग फॉर टीवी और कैम और फिल्म्स, इनमें काम नहीं मिल रहा है ना। मतलब चांस ही नहीं मिल रहा, ब्रेक ही नहीं मिल रहा कि आप कोई भी काम कर पाओ वहां पे। तो हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा मेरे को मिल गया काम। वो ऐसा था कि मैं आपको पीछे की बैक स्टोरी बता रहा हूँ। जब इतना सब कुछ मैं यहाँ से दिल्ली से करके गया था, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को इसमें आई कम्युनिकेट करने में बाकी लोगों से, क्योंकि सब मेरे को जानते तो है नहीं। आपको बस वो काम से जानते हैं कि आपने कितना काम किया हुआ है। और वहां पे एक से एक लोग आते हैं और जाते हैं और बातें बनाते हैं, ऐसा भी होता है। तो मेरे को बहुत मुश्किल लगी अपना ट्रस्ट उनके ऊपर डेवलप करने में, कि भाई मैं भागने नहीं आया हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ आपके साथ। और मेरी कोई ऐसी बैकग्राउंड भी नहीं है कि मैं कोई मतलब कि बचपन से कुछ काम करता आया हूँ, बट मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। और तो फिर क्या हुआ कि बातें रही बातों तक, लेकिन मैंने फिर अ, बस बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर दिया। मैंने उनको क्या बोला कि गाना बना के दूंगा, तो मैंने गाना बनाना शुरू कर दिया। मेरे को जो सिंगर्स मिले वहां पे, मेरे को दिग्विजय सिंह परिहार मिले, जो कि दिल्ली में मेरे को ऑलरेडी एक बार मिल चुके थे। ओखला में कोई हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। उनका एक शो आने वाला था स्टार प्लस में, एक होता था, नाम मैं भूल गया हूँ, सॉरी। पर मतलब कि छोटे बच्चे से गा रहे हैं वो। तब से वो मेरे को मिल गए थे। और बम्बई जाते ही पहला चेहरा जो मेरे को दिखा, वो दिग्विजय का ही था। आज तो क्या हुआ कि वहां पे मेरे पास सिंगर था, मेरे पास गाना ऑलरेडी बना हुआ था, मेरे पास कई गाने में बनाते रहता था। तो मैंने कहा दिग्विजय एक मेरे लिए गाना गा दो। उस समय वो ऑलरेडी एक शो कर रहे थे टीवी का। उन्होंने कहा देखो फटाफट करना पड़ेगा आपको जो भी करना है, क्योंकि मैं तो शूटिंग पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, शो करता हूँ, और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप टेंशन मत लो टाइम की, मैं अपना काम तैयार रखूंगा। और आप बस थोड़ा सा स्लॉट दे देना रिकॉर्डिंग का, जैसे 1-2 घंटे में हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे सीधा स्टूडियो में जाके। तो उससे पीछे मैंने पूरा बैकग्राउंड पे काम करके रखा था। बम्बई में जितने लोग गए हैं उनको पता होगा, बहुत मुश्किल होती है रहने में। तो एक छोटी सी जगह होती थी कोई मेरे को, जहां मिल जाती थी, हेडफोन लगाता था अपने लैपटॉप पे। लोग कुछ भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ भी, मैं उन पे ध्यान नहीं देता था। मेरा गाना बनना चाहिए, लोगों से काम की बात होनी चाहिए। और जिस दिन रिकॉर्डिंग की बात थी, उस दिन सीधा हम गए स्टूडियो में। रात को 1-1:30 बजे भी स्टूडियो वहां पे बुक हो जाता है। ये अच्छी बात है मुंबई की, कि लोग काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग करी वहां पे, और गाना तैयार हो गया, और मेरी तरफ से मेरा काम हो गया था। मतलब कि होती बातें कि कब निकलेगा, वो सब वो बाकी बातें है ना। वो वहां पे जो लेबल बैठे हैं, जो कंपनीज बैठी हैं, उनको देखने दो कि वो सब कैसे निकालते हैं। आप अपनी तरफ से अपना 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 काम करके दे दो। ठीक है, मेरा काम था म्यूजिक बनाना, कंपोज करना, जितने आर्टिस्ट सारे उनको रिकॉर्ड करना। वो कर दिया मैंने ट्रैक पूरा का पूरा, प्रोड्यूसर जिसने पैसे लगाए थे हमारे प्रोजेक्ट पे, उसको मैंने उसी की गाड़ी में सुनाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लिटरली जब तक मैं इरिटेट नहीं हो गया, वो इरिटेट नहीं हो गई, तब तक मैं सुनाता गया। मैंने कहा क्योंकि आपके पैसे लगे हैं, मेरा काम है, प्रोफेशनलिज्म में, कि आप जब सेटिस्फाई हो जाओ तब तक मैं आपको सुनाता रहूंगा। और फिर फाइनल जिस दिन वो जिस जब एकदम बड़े मेरा गाना लेके गाड़ी में घूम के आ गए पूरा चौपाटी वगैरह, और फिर उनको फील आ गई कि हाँ सही लग रहा है, गाना सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा अब ठीक है ना, चलो ठीक है, अब मेरे को एक काम करो आप, थोड़ी सी अब मेरे को नींद चाहिए बहुत। आई यूज्ड टू वर्क लाइक वर्कहॉलिक। उस वक्त मैं सो गया, और फिर काम भी मेरा हो गया। और बम्बई में ऐसे होता है, कड़की हो जाती है, कैसे तैसे होके मैं आ गया दिल्ली। और वो बता रहे थे फिर उसके पोस्ट की बातें वो कर रहे थे मेरे से। मैंने कहा मेरे को इन चीजों से आप दूर रखो। अब थोड़ा मतलब कि लेट्स लेट्स शेयर द बर्डन। अब आप वीडियो का आप देखो, मेरे को आती है वीडियो शूट करनी, जबकि मैंने आपके साथ टीवी प्रोडक्शन ही सीखी है। बट वो डिग्री का काम नहीं कर रहा था मैं। बस मैंने अपना जॉब रोल डिसाइड किया होता कि मैंने गाना बना के देना है आपको, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। और वहां पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनको भी म्यूजिक सेंस है, कमाल की बात है।
क्योंकि उनके लिए रोज का काम है वो। तो वहां से भी मेरे को इनपुट लगा कि उन्होंने कहा कि आपका गाना अच्छा है लेकिन ज्यादा लेंदी हो गया। उन्होंने थोड़े थोड़े क्यू मार्क्स कट कट करके मेरे को दे दिया। तो मैंने भी मतलब कि एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी म्यूजिक। बम्बई के म्यूजिशियंस के साथ मैंने पहले कभी काम किया नहीं था, बट जब एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर उन्होंने थोड़ा पेपर वर्क मांगा। तो पेपर वर्क मेरे को मॉडर्न तरीका आता है, डिजिटल सिग्नेचर करके एनओसी वगैरह देना लेना, ये सब काम मैंने फटाक से कर दिया था। और पता भी नहीं लगा कि कैसे हो गया, क्योंकि ये सब चीजें तो मैं मतलब कॉलेज टाइम से करते आ रहा हूँ ना, कागजी काम वगैरह। और म्यूजिक अब तो बनाता ही था, म्यूजिक प्रोडक्शन की मैंने सीखना शुरू कर ही दिया था, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम मेरे को ये हुई कि उन लोगों पे ट्रस्ट कैसे हो। वो कह रहे थे अबे तू फेंक रहा है या कुछ ऐसा, उनको लिटरली ऐसी लड़ाई सी होने लगी। तो मैंने उनको बोला देखो भाई साहब, ये मैं काम कर चुका हूँ पहले, ठीक है, आप एक काम करो, टाइम्स की वेबसाइट खोलो, देखो इसमें टाइप करो मेरा नाम, ये देखो 4 गाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कह रहे हाँ आ रहे हैं। मैंने कहा बस, तो प्लीज अब मेरे से ज्यादा ना बुलवाओ, ना तो आप बोलो ज्यादा। आप अपना काम करो, अगर आपकी वाकई में कंपनी से बात हो रही है तो उनको दिखाओ कि ये वही आर्टिस्ट है, इनका नया गाना आ रहा है, अब आपको निकालना है, हम पैसे माना। हाँ, फिर मैं बता रहा हूँ ना, एक पैसा, एक जो अंदर की बात बता रहा हूँ, एक पैसा ना लिया ना दिया, आपने काम करके दिया। और नाउ इट माई कंपोजिशन इज देयर प्रॉपर्टी। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अब उसके बाद अगर मैं दोबारा अपने चैनल से, यूट्यूब चैनल से अगर मैं गाना डालता हूँ, टिल द कंपोजिशन बिलोंग्स टू द कंपनी। तो उनकी तरफ से कॉपीराइट क्लेम आता है कि आप इसका कवर वर्जन निकाल रहे हो। तो बेशक मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ इस चीज का, लेकिन वंस द डील इज डन, देन इट इज डन। नाउ दे आर द ओनर ऑफ द कॉपीराइट्स। हम्म। इन कॉपीराइट्स के बारे में तो बहुत कॉम्प्लेक्स बातें हैं यार, लेकिन ऐसे मेरा काम हो गया, और जब वो सामने आया बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं मिलता, मिल गया मेरे को ब्रेक, और मेरे ख्याल से यही था ब्रेक। उसके बाद जो कुछ थी फिर तो वो आगे पीछे की बातें थी। अरे वाह, पल्लव देखो ये आ रखे, पल्लव इंडियन आइडल से ही आ रखे। मैं अभी पल्लव देखो इनकी बात कर रहा था, इनकी भी मेरे पास, तब बम्बई में मैं था जब हम शायद शूटिंग वगैरह कर रहे थे, तो इनका कॉल आया कि क्या कर सकते हैं। मैंने कहा देखो, जो अगर सच्चा काम करोगे ना, क्योंकि बम्बई में डाइवर्जन बहुत है, बहुत डाइवर्जन हैं, तो आप अपने काम पे फोकस करो, अपना काम हो जाता है। बाकी मैं याद नहीं करना चाहता क्या क्या डाइवर्जन होती है। काम तो हो गया अच्छा, और आज उसी की वजह से सब जगह जो वो कंपोजिशन, जो मैं बनना चाहता था कंपोजर, वो नाम मिल गया। लेकिन मैं और काम करना चाहता हूँ। बात ये है, उसके लिए आई हैव टू बिल्ड मोर ट्रस्ट, क्योंकि वो लोग बचपन से कर रहे हैं ये काम, मैं शौकिया तौर पे कर रहा हूँ, कभी पढ़ाई के साथ साथ कर लिया, तो कैसे होगा ट्रस्ट डेवलप। वो दैट वी हैव टू फिगर इट आउट। रिसेंटली आपने कोई सॉन्ग कंपोज किया हो चाणक्य जी, वी वांट टू लिसन दैट सॉन्ग। रिसेंटली जो मैंने कंपोज किया, मेरे ख्याल से मैं एक आपको सुनाता हूँ एक सॉन्ग, ये हमारे बैंड के टाइम का है, रिसेंटली तो नहीं। वही गाना सुनाओ सर। अरे सर, एक और सुनाता हूँ मैं, ये भी अच्छा सॉन्ग है। मैं आज इसको याद कर रहा था, क्योंकि ना कंपोजिशंस की आपने बात करी, तो कंपोजिशन आजकल बड़ी कॉमन हो गई है, दैट 3 कॉर्ड्स वाला, ई माइनर डी सी एंड देन उसी के लूप पे चलने वाला, तो वो एक स्टीरियोटाइप हो गया। उससे ज्यादा ज्यादा वेरिएशन करके हम तब बनाते थे जब हम मतलब जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो हम लोग उस समय म्यूजिक बनाने की कोशिश करते थे, तब ये सब गाने चलते ही थे ऑलरेडी, तेरा यकीन और जितने पाकिस्तानी बैंड्स हैं, इन सब के इन सब की कैसेट सीडीज हम पड़ी रहती थी, हम सुनते थे। पर हम सोचते थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बनता ऐसा, हमारे यहाँ थोड़ा इंडस्ट्री डिफरेंट है, फिल्मों के साथ म्यूजिक चलता है ना हमारे यहाँ, ऐसा सीन है। तो मैं आपको सुनाता हूँ एक सॉन्ग, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना। मैं थोड़ी सी ट्यूनिंग करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड के साथ ही हूँ। अगर आपको दिखता हो कीबोर्ड तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कीबोर्ड दिखे। ये पीछे हमारे कोई, व्यूअर्स अगर कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो डिमांड कर सकते हैं। यार एक तो कॉपीराइट इशू ना आए ना आपकी वीडियो पे, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने सॉन्ग गाऊं, जिनके कॉपीराइट्स मेरे पास हैं। नहीं तो आजकल ये लोग भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं अब म्यूजिक में कॉपीराइट को लेके, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट था वहां पे, तो दैट्स हाउ दे आल्सो बिकम स्ट्रिक्ट। बॉम्बे इज लाइक व्हाट यू गिव यू गेट। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता कुछ करके कि मेरे पैसे ले लो, मेरा नाम मत लेना, तो शायद वो पैसे करके मेरे को नक्की कर देते। मैंने कहा कि नहीं, मेरे को नाम ही चाहिए, मेरे राइट्स हैं। राइट्स की बातें ज्यादा कर रहा था, तो उन्होंने उन्होंने भी राइट्स की बातें ज्यादा करी मेरे से। It's a fair deal with them, what I would say.
टेम्पो रखते हैं हम ट्रांसपोज -2, टेम्पो रखते हैं 106. So are you guys ready? हाँ, okay. ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा बंधन है, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा बंधन है. सांसों का, सांसों का, सांसों का, सांसों का, सांसों का, सांसों का. कौन है वो मुस्कुरा जो गया, जिंदगी में दे गया एक सुकून सा नया. कैसा ये गीत है, कैसा ये साज है, खामोशी से उठी किसकी आवाज है. ये कैसा सिलसिला है, ये कैसा सिलसिला है. ख्वाबों का, ख्वाबों का, ख्वाबों का, ख्वाबों का, सांसों का. ला 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 ले, ला ला ले, ला ले, ला लो, ला ला ले, ला ले, ला ले, ला लो.
जागे सोए से अरमान है, साथ खुशी के डर का एहसास है, ये दीवानगी का महराम है, रास्तों में कहीं रुक जाने लगा, मुस्कुराने लगा, घबराने लगा, पूछो न क्या हुआ, कैसे हालात हैं, रंगों में बह रही खुशी बेलगाम है, मुझे हम सफर मिल गया है, मुझे हम सफर मिल गया है, राहों का ख्वाबों का सांसों का राहों का Tada. Very nice. So this was one of the song, ये काफी बाकी जो बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स हैं उनसे हटके है। इनफैक्ट जो आप ब्रेक भी कह रहे हो इंडस्ट्री का, तो उसमें मैं पहली बार ये देख के हैरान हुआ कि हाउ दे पीपल आर वेलकमिंग मी। उसमें मेरे सॉन्ग के टाइटल के आगे लिखा उन्होंने न्यू पॉप। खुद से ही उन्होंने एक जेनर समझा कि मैं जो म्यूजिक देना चाहता हूँ इंडस्ट्री को, दैट इज कॉल्ड न्यू पॉप। तो मेरे ख्याल से सूफी रॉक तो पहले जब मैं बनाने की कोशिश करता, लेकिन इंडस्ट्री तक पहुंचते पहुंचते वो न्यू रॉक बन गया। थैंक यू। सो एक मैं आपको बंदिश सुनाना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करो। ये तानपुरा सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। बैक टू द बेसिक्स, वो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखो ये हर एक सॉन्ग का ना एक मूड होता है। ये सॉन्ग मैंने बनाया कैसे, मेरी किसी फ्रेंड से, ये मैं शेयर करूंगा बिल्कुल इंसिडेंट आपको। मेरी कोई फ्रेंड थी, उनसे मैं फोन पे बात कर रहा था। मैंने कहा कोई इंस्पिरेशन नहीं आ रही यार, मैं कुछ गाना क्या बनाऊं। उनका बताओ क्या कर रहे हो? वो कह रही मैं तो ड्राइंग कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे लिए भी कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या बनाऊं। मैंने कहा कि आपके सामने क्या है? वो कह रही मेरे सामने कौवा बैठा हुआ है। मैंने कौवा बना दो। एंड ये आप मजाक समझ रहे हो, लिटरली मेरे पास पड़ी हुई है वो ड्राइंग। शी ड्रू अ कौवा
और उन्होंने मेरे को भेजा, मेरे को कहीं हम मिले थे शायद, तो उन्होंने मेरे को दिया इतना बड़ा शीट में कि लिटरली उसमें कौवा बना हुआ है, हैंड स्केच्ड एंड वेरी गुड। मैंने कहा इसे कहते हैं डेडिकेशन यार। तो घर आया मैं और मैंने इस सॉन्ग को कंप्लीट किया। ये एक सॉन्ग एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और मैंने इसके 2 पैराग्राफ और लिखे। और टाइम्स के साथ जो पहले एल्बम हमने करी थी दिल्ली में, दिल्ली के जाने माने अब तो आरजे हैं वो, तत्वा के 95 एफएम पे आते हैं। उससे पहले उनका प्रोडक्शन हाउस था, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके एक एल्बम निकाली थी। उसमें एक सॉन्ग ये इंक्लूड किया था, रिश्ता नाम था इस सॉन्ग का नाम, जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। खैर, अब मैं आपके सामने एक बंदिश पेश करूंगा, वन एंड ओनली बंदिश जो मेरे को आती है। और ये राग है, शाम का ही राग होता है, इवनिंग में गाया जाता है। राग इज कॉल्ड भोपाली। ठीक है, 5 सुर होते हैं इसके, बेस 5 सुर, और इस पे मैं कुछ सुनाऊंगा आपको। सानी नी सा सानी धा पा पा धा नी सा सा रे गा गा पा रे गा धा सा सा रे गा गा पा रे गा धा सा सा रे गा पा धा धा सा धा सा रे सा धा रे गा धा सा। बंदे शुरू करता हूँ। सखीरी सुन बाजत बांसुरिया, सखीरी सुन बाजत बांसुरिया, सखीरी सुन बाजत रिया, सा रे गा गा
पारे गा धा सा सारे गा पा धा धा सा धा सारे सारे साधा सारे सदत आ पा नयन विशाला गलवन माला नयन विशाला गलवन माला वृंदावन में घन कूजन में वृंदावन में घर पूजन में नाचत सांवरिया सखी सुन बाजत बांसुरिया सखी सुन बाजत बांसुरिया तुंद्रे ताना द्रीम ताना द्रीम ताना ना द्रीम तुंद्रे ताना द्रीम ताना द्रीम द्रीम ताना ना द्रीम 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 तोम 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 दिरि 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 दी ताना द्रीम द्रीम तोम 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 दिरि 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 दी ताना दा दिरि दिरि गिटे दिरि 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 गिटे दिरि दिरि गिटे तिरि गिटे तिरि गिटे दा तिरि गिटे तिरि गिटे दा तिरि गिटे तिरि गिटे दा 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 तिरि गिटे तिरि गिटे दा 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 तिरि गिटे तिरि गिटे दा बाजत तुंद्रे ताना द्रीम बाजत तुंद्रे ताना द्रीम ताना द्रीम ताना थैंक यू ये मैंने काफी टाइम के बाद बंदिश भी गाई है और आपको सुन के पता लग गया होगा कि कितनी वेरिएशन है ये गाने में और इससे पहले जो मैंने 2 गाने और सुनाए तो इसीलिए ट्रेडिशन म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बहुत सारी मेलोडीज और बहुत सारे गड़े खजाने मिल सकते हैं आप एक बार सरेंडर करना सीखो दैट्स व्हाट आई वुड से और ऐसा है कि देखो एक एक टाइप का जॉनर आपने पकड़ लिया ना आपको लगता है हमें सब कुछ आ गया ऐसा नहीं होता है आप सीखते रहते हो ठीक है और आपको बिल्कुल हम्बल रहना होता है आप कभी भी कंप्लीटली कुछ नहीं सीखते हो दैट्स व्हाट आई आल्सो बिलीव किसी भी आर्ट के अंदर आप जस्ट आप रोज एक्सपेरिमेंट्स करते हो रोज कुछ नया सीखते हो दैट्स व्हाट आई बिलीव ये और मैंने कितने सालों पहले मतलब कि कितने साल तो नहीं 10 साल पहले ही सीखा होगा ये राग और ये बंदिश और मेरे को अभी तक याद है इसका मतलब कि मेरे को बहुत अच्छा सिखाया गया कि मेरे को अभी तक याद है और वो सिखाते ऐसे नहीं थे कि जैसे आजकल होता है ना जूम क्लास पे रिकॉर्ड कर लो बाद में सुनते रहना वो गुरुजी मेरे को कहते थे कि एक बार सुनाऊंगा उसके बाद सुनाऊंगा ही नहीं तुम्हारे कान इतने तेज होने चाहिए कि तुम्हें याद रहे और मेरे कान ऐसे डेवलप हो गए कि मेरे को गाना जिस समय सुनता था वापस आते आते रटते हुए आ रहा हूँ और ट्रैफिक की आवाजें लोगों की बातें बेटा खाना खा ले ये सब दिमाग में घुस रहा है मेरे को बंदिश कहाँ से याद होगी अगले दिन तक पूरी बंदिश वैनिश कुछ याद नहीं और एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी ऐसे सेट हो जाती है ना मेरे को तीसरे दिन पूरा का पूरा गाना याद A to Z मतलब थोड़ा रेंडर होने में टाइम लगता था ब्रेन की ऐसी आदत पड़ गई एक ऐसी प्रैक्टिस हो गई कि मेरे को तीसरे दिन एक धुन नई धुन मेरे को कभी भी सुना दो थर्ड डे मेरे को एक दिन का गैप के बाद पूरी याद हो जाती है थैंक यू सर ये श्री काले जी ये क्लासिकल म्यूजिक के काफी अच्छे जानकार लग रहे हैं और मेरे को अच्छा लगा इनसे बात करके और मैं कह रहा हूँ कि क्यों हमें ट्रेडिशन पे ध्यान देना चाहिए और मैं क्यों प्रमोट करता हूँ क्योंकि यार मेरे को तो फ्री में उन्होंने सिखाया ना ये मैं बताता हूँ दिल्ली में प्रसन्ना जितने लोग जानते हैं फ्लूट फैमिली से हैं और राकेश प्रसन्ना राजेश हाँ तो मैं इनसे मिला और उनसे काफी फ्रेंडली बात हुई एक बार अपने स्टूडियो बुलाया उन्होंने और कितने लोग इनके बारे में कुछ भी बोलते रहते होंगे तो ऐसा तो यार मेरे पीछे भी कई लोग बोलते रहते होंगे मैं उन चीजों पे ध्यान नहीं देता मैं ध्यान देता हूँ मेरे से उनके सामने सामने क्या बात मैं बंबई पहली बार गया मेरे को पता लगा कि मेरे बारे में और मैं अभी तक पहुंचा भी नहीं हूँ बंबई और मैं बदनाम हूँ वहां पे ऑलरेडी फॉर नो व्हाट रीजंस जब मैं मिला किसी से सामने सामने उसने कहा मैन यू आर अ जेम मैंने कहा यार ऐसे ही होता है अफवाह ऐसी ही होती है और जब तुम मिलते हो किसी से तब कुछ और पता लगता है ठीक है तो
यही बात मेरे भी समझ आती है, और हर किसी को बैठ के समझाने की कि मैं सही हूँ, कोई और गलत है, ये फायदा नहीं है ना। और अपने अंदर आप खुश रहते हो, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन रहती हो कि कोई दुनिया में कुछ भी चले, ये ज्ञान मेरे पास है और इट कैन इंटरटेन मी एनी टाइम। मेरे पास यूट्यूब की वीडियो शायद सारी खत्म हो जाए, सारी कैसेट्स, सारी सीडीज खत्म हो जाए, लेकिन ये मेरे पास साथ, मैं कितना भी कभी भी इंटरटेन हो सकता हूँ, कर सकता हूँ। और कितने गाने बन सकते हैं आपको नहीं पता। राग इज लाइक अ स्केल जिसके अंदर कितनी सारी मेलोडीज आप बना सकते हो। मैंने एक बुक भी लिखी है इसके ऊपर, बहुत जल्दी आएगी। बुक का नाम है हाँ, प्लीज इंट्रोड्यूस योर बुक ऑल्सो। बुक का नाम है, मैं बता देता हूँ, बुक का नाम है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। ये मैंने अपने फादर को डेडिकेट की है। जब मेरे फादर जिंदा थे तब उन्होंने ये अपने एम्प्लॉयज को कहते थे वो, कि जमाना वो नहीं रहा कि जब आप कहते थे कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जमाना अब कंपटीशन का है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए और एक चीज में पारंगत भी होना चाहिए। पारंगत आई मीन टू से दैट शुड बी योर एक्सपर्टीज, कि एक चीज में आपको कोई नहीं हरा सकता, बाकी सब चीजें भी थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। जमाना भी है। तो उसमें मेरे को जो 10 स्किल्स आते हैं, एक रावण की तरह जैसे 10 स्किल्स थे उसके, मैंने इसी तरीके से उसमें अपने 10 स्किल्स जो हैं, जिनसे मैंने थोड़ी थोड़ी कमाई या थोड़ी ज्यादा करी है कभी कभी, तो वो मैं बच्चों के साथ, नए जो हैं उनके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है। अब बाप बेटे को गाड़ी चलाना सिखा दे तो उससे इतना कमाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। हम जब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम जब बात क्लीन एनर्जी की कर रहे हैं, तो अब हमें पुरानी टेक्नोलॉजी और पुरानी आदतें और पुराने स्किल्स से ऊपर आके नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो उसमें कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि मैंने सीखे हैं और मैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे अपनी बुक में भी मेंशन कर रहा हूँ। बाकी तो ऑब्वियसली यू नीड अ मेंटर जो कि आपको अच्छे से सिखा पाए। आपको और मेरे को भी काफी अच्छे मेंटर्स मिले थे वाईएमसी के अंदर, जिन्होंने हमें कैमरा सिखाया, डायरेक्शन सिखाई, एक्टिंग सिखाई। और उनको मैं आज भी अपनी गुड बुक्स में, और जब मैं कुछ ऐसा परफॉर्म करने जा रहा होता हूँ जो मेरे बस का नहीं होता, तो मैं बिल्कुल याद करता हूँ उनको। और मेरे ख्याल से वही सब याद रखते हुए मैंने वो बुक लिखी है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। बहुत जल्दी आएगी, तो मैं सबको वो कोशिश करूंगा वैसे तो फ्री हो, लेकिन यार बिल्कुल मैं सब कुछ ही फ्री दे दूंगा, तो आई विल पे माई बिल्स। तो आई विल ट्राई टू कीप द प्राइस वेरी लो। एंड रेस्ट तो आपको पता ही है, तानपुरा ऐप बिल्कुल फ्री है। वो आप एंड्रॉइड के लिए फ्री है। एप्पल वाले बोलते हैं मेरे को, पहले अजीब बातें करते हैं ना बच्चे भी, कि एप्पल के लिए क्यों नहीं निकाली। यार एप्पल के लिए एक डेवलपमेंट फीस होती है, $10, 10 नहीं, $100 की फीस जाती है हर साल की। वो सब खर्चे हैं। जब मैं कुछ फ्री कर रहा हूँ तो मेरे को पीछे से बैकिंग नहीं है ना, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। जब मैं बता रहा हूँ क्लासिकल म्यूजिक में फ्री में आपको बिठाया, सुनाया और जाने दिया, तो मैं फ्री में ही उनके लिए ये सब कर सकता हूँ। बाकी सब चीजें तो फ्री नहीं हो सकती है ना। तो दैट्स व्हाट इट इज। आह, कितना कुछ कह दिया। बट आई फेल्ट रियली गुड आफ्टर सिंगिंग दीज ऑल सॉन्ग्स। मैंने तो यार एक और सॉन्ग आपके लिए तैयार किया था, लेकिन मेरी फोन की बैटरी जा रही है रूपाली। आई एम सो सॉरी। No worries, Chanakya. वो Okay, so I think I have to end this देखो, मैं section. अपने पुराने फोन पे ही टिका हूँ। मैंने भी पुराने कपड़े, कोई नए कपड़े नहीं खरीदे। सबके साथ ही वो प्रॉब्लम है ना। तो मैंने अपने स्किल पे और एक नया स्किल डेवलप किया कि मैं लिखूं, लिखता हूं तो अच्छे से लिखूं। और फिर मैंने एक नहीं, दो दो बुक लिखने की कोशिश करी और सॉफ्टवेयर बना दिया। अब मैंने इंजीनियरिंग सीखी है, तो उसका इनपुट कहाँ देख सकता हूँ। मैं डॉक्टर तो हूँ कि मैं वैक्सीन बना दूं, पर मैं कुछ और बना सकता हूँ जो अपने ज्ञान से। तो मैंने एक ऐप बना दी जो कि फ्री में रखी है सबके लिए। उसका मेरे को इंडियन कॉपीराइट भी मिल गया है। तो एक जो एक एक भक्ति रस होता है कि हमने देश के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए क्या किया। तो मैंने मेरे मरने के बाद भी 60 साल तक वो कॉपीराइट इंडियन इंडियन ही रहेगा। और तानपुरा मैं कई लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता, इट्स एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट। ये जो पेटी है ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट से आई है, और जितने गिटार हैं ये सब स्पेन से आया है, लेकिन तानपुरा हमारा इंडिया का बेस इंस्ट्रूमेंट है। ताली होनी चाहिए इस बात पे। Definitely, we all are enjoying Chanakya while talking to you because you don't talk to everyone. I know that. You just talk to your mother, everything, and you have very few friends like me. So, मेरी कोशिश यही है चाणक्य कि जो ऐसे टैलेंट हैं हम उनको लेकर आ पाए। और आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप इतने सारे गुरुजी से मिले, आप इतने पहुंचे हुए लोगों से मिले। डेफिनेटली सबको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा, और वो खुद भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपनी कला से सीखते हैं, हम अपनी अच्छाइयों से सीखते हैं, जैसा आपने सीखा। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है, क्योंकि मैं देखती हूँ जो बहुत छोटे बच्चे हैं,
उनको तो वो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फोन, मोबाइल फोन्स एंड क्योंकि मुझे याद है चाणक्य जब मैं थिएटर मैंने स्टार्ट किया था करना तो मेरा फोन सुबह बैग में होता था और रात को मैं बैग से निकालती थी। एम आई ऑडिबल? आई थिंक चाणक्य की बैटरी ना चली गई है। आई थिंक सॉरी माय फोन बैटरी डायड। ओह, ये अपनी धुन में है। ओके, सो आई होप ओके इट्स फाइन चाणक्य, इट्स फाइन, वी विल टेक यू अनदर डे। आई होप आप सबने सेशन बेहद पसंद किया होगा और हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसे टैलेंट्स को लेकर आ पाए। और थैंक यू सो वेरी मच इन माय शो साक्षात दर्शन। और हम ऐसे लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में काफी काम किया है, जिन्होंने एनएसडी में काफी काम किया है, जिन्होंने इंटरनेशनली काफी मूवीज में काम किया है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपसे रूबरू करवा पाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।